Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar Gurugram. Today I start with my lecture number 10, which are came under Unit 2, and this chapter is very important for both CSE and Electrical 6 semester student, which are came under study of digital system design through VHDL. So in my today lecture, I have covered several topics, that is concurrent signal assignment statement, concurrent versus sequential signal assignment statement, structural molding, component declaration, and component instantiation. So that part is very much important as per the exam point of view, and plus your as per your you can write the code in your VHDL molding style with the help of your structural molding. So firstly, I start with your lecture, that is concurrent signal assignment statement. What do you mean by concurrent signal assignment statement? One of the primary mechanism for modeling the data flow behavior. So that, as discussed in my previous lecture, I also told about what do you mean by concurrent signal assignment statement. Simply you can signify that the concurrent signal assignment statement is a part of a data flow modeling style. Okay, so by the use of these statement in your program, okay, you can assign the value with the help of your signal assignment operator after done the operation on your right hand side, and will be assign the value to your right hand side. So that concurrent means its order is not fixed, it will be randomly execute. So this is not a proper way to execute any program. So for the proper execution of any program, we require a sequential assignment statement which are executed in a sequence wise. So that's why its name is a sequential assignment statement. Here show we one example of a concurrent single assignment statement. Here we also take the example of your OR gate. So any program which are make by your concurrent signal assignment statement, that code is right in that manner. So in that case, we are using OR gate having two input and one output. So in your OR gate, you are first one, you declare the entity, and you make a program with the help of data flow or either concurrent model style. If you use the word data flow, it means that will be came under your concurrent signal assignment statement. So that is a must for you key in data flow model, you can use only concurrent assignment statement. So I will declare the entity first by the use of entity declaration part here. And entity, your name is of entity is or2, port AB as an input and Z as an output, and or 2. Then you can define the architecture of that particular entity, and you can define the architecture with the help of your one signal assignment statement used here, that is Z will assigning the value A or B after 9 nanosecond. So in my today lecture, I will told about your concurrent signal assignment statement with the help of that program. In that particular program, so you can use here a concurrent signal assignment statement, which will be helped with the help of your signal assignment operator. Here we done the operation on your signal A and B, and after some time it will be assigned the value to your Z. Here we use our gate, and you can use our single assignment statement with the help of your single assignment operator. You done the operation on both operand A and B, and after some time, after 9 nanosecond, you will be assigning the value to your Z. So that is a part of your concurrent single assignment statement. So program is very small, so in that case we can use only one single assignment statement, and its current execution time will start from your 9 nanosecond. After 9 nanosecond, it will assign the value to your Z. And another part that should be came under with your we also share one more example of your full ladder with the help of two signal assignment statement here. So in that case, I will told about in previous lecture, in concurrent signal assignment statement, it order is not fixed, it will be randomly execute. So here we mention the architecture body contains a single concurrent statement that represent the data flow of the gate. The semantics interpretation of the statement is that whenever there is an event occur on A and B, the expression on the right hand side evaluated and its value scheduled on the appear on Z after 9 nanosecond.
which I told in my previous video. So here we also show one more part. So here that is called your and primary part, or that is called your secondary part. So primary part came under with your entity declaration, and the secondary part came under with your either you write the program or you told the behavior of that particular program with the help of your data flow, or either structural or either behavior modeling style. So sometimes here we also show we can also one major difference which I told in my previous lecture. If you use the word in architecture part, that is a process. So process is a part of your sequential statement, so that will be create a difference between your data flow and behavior modeling style. So here we mention your concurrent, we can use two concurrent single assignment statement. As we know about your full adder having your 3-bit A, B, and C. C stand for your previous year's carry, and you add 3-bit one by one. That depends upon whether you assume A from this side, right side, A, B, and C, or either you write A, B, and C from left to right. That depends upon you. So as per my assumption, if you write A, B, and C in, you can add bit by bit, and you find the two function at the output, that is sum and carry. So as the digital you can in the previous semester you can digital electronics study very well. So in the case of digital electronics you can study about your full adder. So here we design the full adder with the help of your concurrent single assignment statement, or either you can write here that is data flow, or you can say concurrent of full adder is. So here we also use a keyword to differentiate among whether the particular code is right in which modeling style, either data flow or either behavior. Clear? So here we use the word concurrent or either data flow. It will be more clear that you write the program in your data flow modeling style. So here we can use full adder. As per the circuit of your full adder, you are having 3-bit and 2 output with sum and carry. Clear? So 3 is your input and that is called your output port. So here we declare the entity A, B, C, N as an input and sum and count as an output. And last one you mention and full adder. Then you write came with your architecture part. After begin, you can use two signal assignment statement. Clear? So that signal assignment statement, it will be execute at some time durations. Clear? If you mention the time duration here after 15 nanosecond, after 10 nanosecond, it will be execute at that particular time. But if you not mention the time here, in that case it will be came under with your delta delay. Suppose your first execution start at 15 nanosecond. If you not mention time here, the next statement will be execute at 15 plus 1 delta. So delta is a default delay which can occur in a concurrent signal assignment statement itself, and delta delay value is nearly equal to 0. Clear? So here we use the word full adder, and also you write the keyword concurrent or either data flow of full adder is. So as per knowing the knowledge of your designing of full adder with the help of gates, we can use A XOR B. जब हम सम करते हैं तो हमें तीनों का XOR मिलता है, और जब हम कैरी निकालते हैं, क्योंकि ये आउटपुट आती है आपकी पूरा टेबल ड्रा करने से, आप A B C इन के लिए आप 3-bit की फॉर्म में टेबल लिखेंगे 000 001 010 एंड 011, और इस टेबल को आप लास्ट वैल्यू 111 तक एक्सटेंड करेंगे। फिर यहाँ पे उसकी कोरस्पॉन्डिंग आप सम एंड कैरी निकालेंगे बिट बाय बिट के एडिशन करके, तीनों बिट के एडिशन करके। क्लियर? तो जो सम एंड कैरी की आउटपुट आएगी उसको हम के मैप के थ्रू डिजाइन करेंगे। तो आफ्टर डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ के मैप यू कैन फाइंड द सम फॉर योर सम, दैट इज A XOR B XOR C in, एंड कैरी ए बी, पहले ए बी एंड होगा, फिर बी सी एंड होगा, फिर सी ए एंड होगा, और फिर तीनों का क्या होगा आपका, सॉरी दोनों का क्या होगा आपका और होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी किसी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर? तो आपकी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 15 पे हुई, तो नेक्स्ट वाली क्या हुई है आफ्टर 10, इट मींस इसका ऑर्डर तो फिक्स यहाँ पे भी नहीं है। द टाइम विल बी डिक्रीमेंट इन मैनर, नॉट इन इंक्रीमेंट इन मैनर। Clear? So that thing much more clear as per your concurrent single assignment statement. So here we use for the sum and carry, you can write the two statement A XOR B, then XOR with C in, and that particular expression assign the value to your sum after some 15 nanosecond. And here also you write the expression for your C out, you can say carry out. First you done the A B or with BC,
और विद सी इन एन ए। क्लियर? तो पहले इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जो इन दोनों की वैल्यू आएगी उन दोनों का और होगा, फिर इन दोनों की वैल्यू का क्या होगा आपका और होगा, और वो वैल्यू आपके आफ्टर 10 नैनो सेकंड के बाद सी आउट को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। क्लियर? सो अब जब आप सिमुलेशन में जाके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करोगे, इस प्रोग्राम को आपने Xilinx सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट किया, तो उसके ऊपर जाके सिमुलेशन में जाके रन करोगे तो आपको इस तरह का जो आपका एक लाइक सर्किट डायग्राम जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर आपके ए बी सी इन क्या होगा, आपका इनपुट पोर्ट होंगे, और सम एंड कैरी क्या होंगे, आपके आउटपुट पोर्ट होंगे। Next, we come with your concurrent word sequential signal assignment statement. What is the major difference between your concurrent sequential statement assignment statement? In case of your sequential assignment statement, such statement are called, उसने बोला है जो स्टेटमेंट आपकी प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी बार ये चीज बताई है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को सिक्वेंशियल के कीवर्ड से शो करते हो, या फिर सिक्वेंशियल की जगह यहाँ मैंने बिहेवियर लिखा हो, क्लियर, प्रोग्राम का नाम तो अलग चीज है, ये आपने सीधा ही आप इस एग्जांपल में आर्किटेक्चर पार्ट में आए हुए हैं, उस आर्किटेक्चर पार्ट में आपने एक सिंपल ए बी जेड जो 3 सिग्नल्स दिए हुए हैं उन पे कुछ ऑपरेशन लगाया हुआ है। क्लियर? तो वो ऑपरेशन क्या है, इनमें से किसी तीनों एलिमेंट्स में उसमें आपका जेड इनपुट है। क्लियर? क्लियर? मतलब कि आपने उसने ये लगाया कि जो बी है वो तो ए को असाइन कर रहा है वैल्यू, और जो जेड है, सॉरी जो ए है वो जेड को असाइन कर रहा है वैल्यू। उसने एक फ्रेगमेंट मान लिया सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू। तो प्रोसेस के अंदर उसने क्या डाला है, आपका बी एलिमेंट डाला है। क्लियर? तो जब कभी प्रोसेस होगा बी के ऊपर, इट मीन्स अगर देखा जाए तो एक वैल्यू तो आपके पास होनी चाहिए ना, तो उसकी उसमें आपके ए और जेड बोथ आर द कॉल्ड योर आउटपुट पोर्ट हियर। क्लियर? एंड आपने जब इसके ऊपर प्रोसेस को किस में डाल दिया, प्रोसेस के अंदर कौन सा एलिमेंट डाला है, बी, तो जब बी के अंदर कोई प्रोसेस होगा उसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, ए की। इट मीन्स आपको जब जैसे ही आपको ए की वैल्यू मिलेगी आप उस वैल्यू को जेड को असाइन कर दोगे। क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट हेयर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड स्टेटमेंट कर दिया। लेकिन जब देखो अब इसमें क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट वो पहले नहीं यूज की उसने, क्यों, क्योंकि उसको ये स्टेटमेंट कैसे वो यूज करता है, उसको ए की वैल्यू मिलेगी तभी वो जेड को जाएगी ना। तो ए की वैल्यू कैसे मिली है, जब उसने बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया है। क्लियर? तो जैसे ही बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगेगा उसकी वैल्यू ए को असाइन होगी, फिर ए की वैल्यू किसको असाइन होगी, जेड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस टू आर कॉल्ड योर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। यू आर नॉट मेंशन that is first one or that is second one, you mention that is first one or that is second one. So that is a part of your you can say sequential assignment statement with the help of your process statement. So here we write the same program with the help of your concurrent assignment statement. उसके लिए मैंने fragment 2 बनाया। क्लियर? इसमें अब आपने क्या किया है, इसमें उसने प्रोसेस वर्ड यूज नहीं किया। क्लियर? तो जब वो प्रोसेस वर्ड यूज ही नहीं कर रहा तो सिंपली दो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि इसमें इसमें और इस में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस के यूज होने से उस सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को एक सीक्वेंस मिल गया कि हाउ you can execute that particular two instruction in a sequence manner, but in that case you not use any process word, or you can say any process element. So in that case, if if a is scheduled to get a new value of b only at t plus a, and z will be scheduled to be assigned with old value of a एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा। इट मीन्स वो ये कह रहा है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन आपकी टी टाइम पे एग्जीक्यूट हुई है तो ये वाली किस पे होगी, टी प्लस डेल्टा पे होगी। क्लियर? सो इट मीन्स बाय डिफॉल्ट आप एक डेल्टा डिले उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो डेल्टा डिले विल बी कंसेप्ट अंडर इन द केस ऑफ योर कॉन्करेंट सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट। इट मीन्स क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक इसको इसकी वैल्यू असाइन नहीं हो जाती। इट मीन्स यू कैन ऐड अ डेल्टा डिले इन केस ऑफ योर सिमुलेशन टाइम इन एडवांस। तो आपने वो टी प्लस डेल्टा एडवांस में मेंशन कर दिया तो उसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सेट को असाइन हो जाएगी। Next, we also show one example of your concurrent statement here. Here we use the word process here. क्लियर? ठीक है? देन बिगिन में आपने क्लियर को वैल्यू असाइन की है जिसमें रीसेट एंड प्रीसेट दोनों आपस में मिलके और ऑपरेशन कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू 15 नैनो सेकंड के बाद किसको असाइन हो रही है, क्लियर को। उसके बाद आपने वेट ऑन रीसेट प्रीसेट करवा दिया, यानी कि एक बार असाइन होने के बाद
आप प्रीसेट और रीसेट के लिए वेट करोगे, क्योंकि देखो जैसे आपने फ्लिप फ्लॉप बनाए थे, अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप को यानी कि एक कास्केडिंग मैनर में शो करते हैं, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का एक प्रीसेट होता है और एक क्या होता है, क्लियर होता है। प्रीसेट एंड क्लियर दैट इज कॉल्ड योर टू एक्स्ट्रा इनपुट फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ एनी यू कैन से काउंटर और यू कैन से रजिस्टर। आपने अपने उस फ्लिप को जोड़ के कोई रजिस्टर बनाया है, काउंटर बनाया है, तो अगर हमने एक्सटर्नली उस चीज को सेट करवाना है तो हम प्रीसेट यूज करते हैं। अगर हमने एक्सटर्नली रीसेट करवाना है तो हम रीसेट यूज करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू और होके किसको जा रही है, क्लियर को जा रही है। तो अगर एक बार फंक्शन क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसने काउंटिंग दोबारा स्टार्ट करनी होती है। सपोज हम बाइनरी काउंटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 4 बिट की काउंटिंग करवानी है, तो हमने 4 बिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है। तो उस 4 बिट के ऐड होने पर जब काउंटर एक बार लाइक 4 बिट का जो भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो रीसेट और प्रीसेट दोनों को और करवा के क्लियर को दे देगा। क्लियर? अब मान लेते हैं कि प्रीसेट जो है आपकी 1 है और रीसेट आपकी 0 है, तो 0 प्लस 1 1, वो किसको चला गया, क्लियर को चला गया, 1 चला गया। अब अगर क्लियर 1 है, इट मींस वो एक्टिव हो गया है, तो वो पूरे डिवाइस को क्या करवा देगा, क्लियर करवा देगा। क्लियर? जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही सारे फ्लिप फ्लॉप 0 पे चले जाएंगे, you can resume the operation from your starting one from in the sense say that 0000। और उसके बाद वो प्रीसेट और रीसेट और प्रीसेट पे क्या लगा देगा, वेट लगा देगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट तब तक वेट करेगी जब तक आपका वो काउंटर काउंट करता करता फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर? सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। So that's why we also use here wait statement. So the wait statement is a part of your behavior modeling style, and process is also part of your behavior modeling style. So that program will show your sequential signal assignment statement. After, you can come with a structural modeling. In structural modeling, an entity model as a set of component connected by a signal that is called a netlist. तो structural model जब भी डिजाइन करना हो आपने कोई प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मॉडलिंग, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, आपको क्या चाहिए, आपको उस लॉजिक का एक स्ट्रक्चर चाहिए। यानी कि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने गेट्स यूज किए हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, रजिस्टर यूज किए हैं, एंड हाउ दे दैट पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आपको स्ट्रक्चर को देख के ही उस चीज का आप मॉडलिंग डिजाइन क्या करोगे, तैयार करोगे। क्लियर? यानी कि उसकी आपकी कोडिंग लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ मॉडलिंग स्टाइल। तभी उसने बोला है कि हम सेट ऑफ कंपोनेंट को कनेक्टेड कैसे कनेक्ट किया हुआ है, बाय द सिग्नल। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, नेटलिस्ट बोलेंगे। इसमें सपोज करो जैसे आपने एक सिंपल सा सर्किट बनाया, एक OR गेट लिया, OR गेट के आउटपुट को AND गेट को दे दिया। ठीक है? इट मींस उस सर्किट के अंदर एक OR गेट यूज हुआ और एक क्या यूज हुआ है, AND यूज हुआ हुआ है। तो दैट OR गेट की जितनी इनपुट जा रही है और AND गेट से जो आउटपुट मिल रही है, ठीक है, वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगी, नेटलिस्ट की। नेटलिस्ट की इन्फॉर्मेशन देगी कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट यूज हुए हैं। क्लियर? सो कंपोनेंट जब पता चल जाएंगे कि टोटल कंपोनेंट जैसे मान लो 2 यूज हुए हैं, एंड एंड और, ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग पहले एंटिटी डिक्लेयर करेंगे। फिर एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट इंस्टेंटेशन के थ्रू आपके आर्किटेक्चर बॉडी में क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्लियर? तो एक प्रोग्राम कर लोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा इसका। तो मैंने जैसे एक प्रोग्राम बताया है आपको, मैंने किसका प्रोग्राम बनाया है, सिंपल एक एंटिटी गेट ले ली, उस गेट की एंटिटी के ऊपर आपने एक लाइक एक गेट बनाया है, जैसे आपने एक डायग्राम बना लीजिए ब्लॉक्स फॉर्म में। उस गेट की इनपुट पे आपने एक इनपुट ए दी है, एक क्लोज दी है, एक MR और एक डी इन दी है। ठीक है जी, ये 4 इनपुट आप किसी गेट को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है? अगर इनपुट 4 है तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, इनपुट पोर्ट में आ जाएंगी, और रेडी एंड कंट्रोल दोनों आउटपुट किस में आ जाएंगी, आपकी आउटपुट में हो जाएंगी। वो एंटिटी आपकी डिक्लेयर होगी है। इट मीन जो गेटिंग आपकी एंटिटी है उसकी 4 इनपुट है और 2 आउटपुट है। ठीक है? उसके बाद आपने उस गेटिंग स्टाइल को किससे बनाना है, स्ट्रक्चर से बनाना है। तो आपने कितने कंपोनेंट यूज किए हैं उसके अंदर, वो ये कह रहा है कि मैंने सपोज करो कि उसके अंदर आपके उसने बोला है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे एक लिख रखा है डी फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक होती है और एक इनपुट होती है, और आपकी सर्किल लाइंस जो है S1 और S2 की फॉर्म में है। तो इसमें उसने क्या यूज किया है, यू फर्स्टली रिमेम्बर द सर्किट ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, सॉरी वन। तो आप ध्यान से देखिए सर्किट को। इस सर्किट के अंदर अगर आप सर्किट को देखो, ओवरव्यू को, तो आपकी 4 इनपुट्स आ रही हैं, इट इज MR, A, clock and D in, and 2 output that is ready and control. So according to that you can declare the entity first. So with the in the entity declaration part of structure style modeling, you can write the first input and then you can write the output. So
ठीक है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एंटिटी को डिक्लेयर करेंगे। इनपुट पोर्ट में क्या आ रहा है, एज पर द फिगर एमआर ए क्लॉक एंड डी इन। आउटपुट में क्या आ रहा है, रेडियन कंट्रोल ए। क्लियर। तो हमने वो चीज को एंटिटी में डिक्लेयर कर दिया। अब हम जितने कंपोनेंट यूज हुए हैं उसको वन बाय वन क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो हमने 3 कंपोनेंट यूज कर रखे हैं। एक आपका नोर गेट है, एक डी फ्लिप फ्लॉप है और एक का आपका एंड गेट है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को पहले हम क्या करेंगे, अपने डिक्लेरेशन पार्ट में क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने उन कंपोनेंट्स को डिक्लेयर किया वन बाय वन। तो अभी ये ध्यान में रखना, जो कंपोनेंट्स के नेम आपने एंटिटी में डिक्लेयर कर रखे हैं, जब आप उन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिक्लेयर करोगे इन योर आर्किटेक्चर पार्ट, तो उनके नेम क्या होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। तो ये एक स्टाइल है इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर मोल्डिंग स्टाइल। तो जब हम फिगर को देख रहे हैं तो उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, आपने एक नोर गेट, एक एंड गेट और एक आपने डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रखा है। अगर हम नोर गेट को देखें तो नोर गेट की 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। क्लियर। तो हमने नोर गेट को डिक्लेयर करने के लिए अपनी क्वांटिटी के अंदर मैंने क्या लिखा है, कंपोनेंट नोड 2 विथ पोर्ट ए एंड बी एज एन इनबिट एंड जेड एज एन आउटबिट। हमने उसके नाम को अलग शो किया है। अब मैंने उसका नाम एज पर दी फिगर अलग क्यों शो किया है, मैंने सिंपली कंपोनेंट के पोर्ट्स काउंट किए, कितने इनपुट पोर्ट है हर एक कंपोनेंट के और कितने आउटपुट पोर्ट है। और जो पोर्ट्स की सिग्निफिकेंस आपने फिगर के अंदर शो की है, अगर देखा जाए तो फिगर के अकॉर्डिंग आपके नोर पे क्या जा रहा है, एक S2 जा रहा है और एक डीन जा रहा है। तो आप इससे अलावा नाम यूज करोगे, ये वाले नाम यूज नहीं होंगे। क्लियर। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये क्यों नहीं यूज होंगे, दैट विल बी क्लियर इन योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट। क्लियर। तो हमने क्या किया, वहां पे उस कंपोनेंट को अलग नेम से ओनली डिक्लेयर किया है। इट मीन नोर की 2 इनपुट है, ए बी और एक आउटपुट है। क्लियर। अब ये भी रिमेंबर रखना कि अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग नेम से डिफाइन कर रहे हो तो आपने वो नेम्स दोबारा यूज नहीं करने हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो पहले मैंने नोड 2 को एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर फिगर को देखें तो एंड की कितनी इनपुट है, एंड की भी 2 है। ठीक है। एंड की 2 इनपुट है। क्लियर। और एक आउटपुट है। तो उन दोनों इनपुट्स को मैंने, अगर नोर गेट में मैंने नाम दिया है उसका ए बी एंड जेड, तो यहाँ मैंने नाम चेंज कर दिया, दैट विल बी एक्स वाई एंड Z1 कर दीजिए यहाँ, सॉरी। क्लियर। क्लियर। उसके बाद आपने डी फ्लिप फ्लॉप को डिक्लेयर किया। तो डी फ्लिप फ्लॉप को ध्यान से देखिए, उसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो आपकी ए और क्लॉक 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। ये ध्यान में रखना, फ्लिप फ्लॉप की आपकी 2 इनपुट आ रही है और 2 आउटपुट आ रही है। ठीक है। तो आप फ्लिप फ्लॉप को डिक्लेयर करने के लिए आपने डी एन क्लॉक क्या ले ली, 2 इनपुट ले ली, एंड क्यू बार क्या ले ली, आपकी 2 आउटपुट ले ली। क्लियर। तो आपने उन कंपोनेंट को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओनली डिक्लेयर किया है। तो आप इन कंपोनेंट को किसी भी ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले नोर होगा फिर एंड होगा फिर डी होगा। तो आपको जैसे बस उसको वन बाय वन डिक्लेयर करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स अनदर नेम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यू दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट डिक्लेरेशन पार्ट। क्लियर। इन आर्किटेक्चर बॉडी इन स्ट्रक्चर स्टाइल मॉडलिंग, अगर आपने कोई प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्टाइल मॉडलिंग में लिखना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, आपका कंपोनेंट डिक्लेरेशन, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन विद द हेल्प ऑफ योर पोर्ट मैप। क्लियर। तो पहले आपने हर एक कंपोनेंट को क्या कर दिया, वन बाय वन डिक्लेयर कर दिया। अब आप कीवर्ड यूज करोगे बी एन हियर। ठीक है। अब उस एंटिटी का नाम लिखोगे। ठीक है। उस एंटिटी का नाम सपोज करो एज पर दी फिगर के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज सपोज डी फ्लिप फ्लॉप को D1 से शो कर दिया, नोर को उसने सपोज N1 से शो कर दिया और एंड को A1 से शो कर दिया। क्लियर। तो उन कंपोनेंट्स को मैंने लेबल दे दिया नाम से, D1 A1 और N1। D1 स्टैंड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, A1 स्टैंड फॉर एंडर, N स्टैंड फॉर नोट। ठीक है। फिर आपने उस कंपोनेंट के नाम लिख दिए, डी फ्लिप फ्लॉप N2 और नोट 2। ठीक है। फिर आपने वर्ड यूज किया पोर्ट मैप। ठीक है जी। अब पोर्ट मैप के अंदर जो जो सिग्नल आपके ओरिजिनल में दिख रहे हैं वही लिखोगे। जैसे मान लो डी फ्लिप फ्लॉप को क्या जा रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर देखो, फिगर के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है, डी क्लॉक S1 S2। ठीक है। तो पहले इनपुट आएंगे फिर आउटपुट पोर्ट आएंगे, तो डी क्लॉक S1 S2। क्लियर। ठीक है। उसके बाद क्या जा रहा है आपका, एंड को क्या जा रहा है, देखो ध्यान से, एंड को क्या जा रहा है आपका, एक तो क्या जा रहा है आपका S2 और एक क्या जा रहा है डी इन, और आउटपुट पे क्या आ रहा है, कंट्रोल ए। तो S2 कोमा डी इन इंटू में कंट्रोल ए, S2 कोमा डी इन इंटू में कंट्रोल ए। ठीक है। और N1 में क्या जा रहा है, N1 यानी कि नोर गेट में आपका क्या जा रहा है, दैट इज MR S1 एंड रेडी।
ठीक है। तो पहले इनपुट MR एंड S1, देन लास्ट में आउटपुट पोर्ट। इट मीन्स क्या होगा, अब आपने पहले कंपोनेंट जो डिक्लेयर किए हुए हैं, अब वो जैसे जैसे कंपोनेंट इंस्टेंटेशन की, अब जो आपने जो 3 इक्वेशन लिखी है, जैसे जैसे फंक्शन कॉल होगा वैसे वैसे ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट इंस्टेंटेशन है दैट शुड बी कॉल्ड विथ योर दैट कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट अपनी एप्लीकेशन में वो लाके यूज करना शुरू कर देगा। क्लियर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि पहले हमने उस कंपोनेंट को जितनी वैल्यू यहाँ है उसके अनदर नेम से यहाँ क्या कर दिया, उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब उसका कंपोनेंट का यूज हुआ है इन योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट विद द हेल्प ऑफ योर लेबल A. So here we mention first input port and last one your output port. Clear. So in my upcoming slides I also show your more program. So अगर आपको इस चीज में कोई चीज क्लियर भी नहीं हुई है तो नेक्स्ट पार्ट में वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें दोबारा बताई हुई हैं। पहले कंपोनेंट डिक्लेरेशन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंटरफेसिंग पोर्ट्स होते हैं जो मैंने पहले बताया। पहले कंपोनेंट लिखते हो, अगर आपने किसी कंपोनेंट को आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर स्टाइल मोल्डिंग में डिक्लेयर करना है आर्किटेक्चर पार्ट के अंदर, तो पहले कंपोनेंट लिखा जाएगा, उसका नेम लिखा जाएगा, पोर्ट के अंदर लिस्ट ऑफ पोर्ट्स होंगी। क्लियर, लाइक इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट। क्लियर। देन कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर उसने 2-3 एग्जांपल और भी शो किए हुए हैं, तो एग्जांपल्स ही सारे। फिर उसने कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन, तो उसके लिखा है कंपोनेंट लेबल। लेबल मतलब कि उसको कोई नाम देंगे, जैसे सपोज करो आपने प्रीवियस प्रोग्राम में नाम क्या दिया है उस कंपोनेंट को, D1। ठीक है। देन उसका पूरा नाम, पोर्ट मैप के अंदर पहले इनपुट पोर्ट और फिर आउटपुट पोर्ट, यहाँ ओरिजिनल आएंगे और यहाँ क्या आएंगे, डुप्लीकेट आएंगे। इट मीन्स वो कंपोनेंट जो हमने डिक्लेयर किया है इसके अंदर भी उतनी इनपुट्स हैं, आउटपुट है, और इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट है। तो जब ये फंक्शन उसको कॉल करेगा तो ये पर्टिकुलर जो आपका कंपोनेंट डी फ्लिप फ्लॉप है वो कॉल विद द हेल्प ऑफ कॉल फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, इंस्टेंटिनिएट हो जाएगा। क्लियर, इट मींस कॉल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो वही सेम चीज दोबारा रिपीट हुई है, तो यू शुड बी रीड केयरफुली। Again you can come with your component instantiation. Also you can write component instantiation for your NEN2 port map S3 open. सो आप इस तरह की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक दो चीजें इसके अंदर और भी मोर एक्स्ट्रा बनाई हुई है। ओपन, ओपन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि एक बार आपने इसको डिक्लेयर किया था कंपोनेंट डिक्लेरेशन पार्ट में, जब आपने उसको कॉल किया है, जैसे आपने ये लिखा हुआ है, जब उसने आपने कॉल किया, मान लो उस पोर्ट का आपने यूज नहीं करना, तो आपने उसके सामने कौन सा वर्ड लिख दिया, ओपन लिख दिया, तो वो पोर्ट पर्टिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ओपन होगा। वो एट ए टाइम क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा। क्लियर। डिक्लेयर करते वक्त तो आपने पोर्ट डिफाइन कर दिए, लेकिन जब वो यूज में आया तो मान लो सपोज आपको नहीं चाहिए, तो आपने उस पोर्ट को पर्टिकुलर क्या कर दिया है, ओपन कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर ओपन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम आपको करवा रही हूँ डिकेट काउंटर पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल स्टाइल मॉडलिंग। तो आप ये ध्यान से देखिए, अगर आपको पिछले प्रोग्राम में कुछ डाउट रह गया तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो डिकेड काउंटर क्या होता है, मेनली आपका अप टू 10 तक काउंट करता है, और 10 के बाद वो इनिशियल काउंट 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी आपके डिकेड काउंटर की, ठीक है, इट मीन्स वो 1010 आएगी। ठीक है। तो जो वैल्यू 1010, क्लियर, या फिर 1010, ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी 1 आ रही है उसको उठा के आपने एंड गेट के थ्रू दिया हुआ है यहाँ पे। ये डिजाइनिंग आपने पहले पढ़ी हुई है। सिंपली इस फिगर को देखते हुए आप उसका स्ट्रक्चरल कोडिंग डिजाइन कीजिए। तो अगर हम फिगर को देखें तो हमने डिकेट काउंटर बनाना है, एंटिटी का नाम क्या लिखा है, डिकेट काउंटर, और फिगर में आपके इनपुट पोर्ट देखो कौन कौन से हैं। ठीक है। पहले काउंट एज एन इनबिट, एंड जेड क्या है आपका, बफर है, क्योंकि हर बार वो अकाउंट क्या है आपका, ओनली काउंट आपने एक इनबिट करवाया हुआ है और कहीं से इनबिट शो नहीं हो रहा। ठीक है। और बफर की आउटपुट कहाँ आ रही है, 4 आ रही है, Z0 Z1 Z2 Z3। सो हेयर वी यूज बफर वर्ड, क्योंकि बिट बाय बिट वो काउंटिंग कर रहा है और हर एक इनपुट को स्टोर करवा रहा है। क्लियर। और 4 आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो Z0 Z1 Z2 Z3, फिर उसके लिए आप ओनली बिट वेक्टर शो नहीं करोगे। क्लियर। लेकिन अगर आपने उस स्टेटमेंट को स्मॉल फॉर्म में चेंज करना है तो जितनी क्वांटिटी आ रही है उसको बिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दोगे फ्रॉम 0 to 3। तो ये इटसेल्फ समझ आएगा कि उसके अंदर बिट वेक्टर कौन कौन से हैं, Z0 Z1 Z2 Z3। क्लियर। उसके बाद आपने 1 बाय 1 कंपोनेंट को डिक्लेयर करवाना है। तो एज पर दी फिगर आपको एक तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं और एक गेट यूज हो रहा है। क्लियर। तो फ्लिप फ्लॉप को डिक्लेयर करने के लिए आपने सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप को डिक्लेयर करवाया, कंपोनेंट को डिक्लेयर करवाते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स आ रही हैं और 2 आउटपुट्स आ रही हैं, तो जे एंड के एज एन जे के एंड क्लॉक,
वो आपकी क्या है, इनबिट है, और क्यू एन एन क्यू वो क्या है, आपकी आउटबिट है। क्लियर। ऐसे कंपोनेंट एंड गेट में क्या है आपकी, आपने उसको किसी नदर नाम से डिफाइन करवा दिया ए एंड बी, क्योंकि देखा जाए कितने इनबिट आ रहे हैं और कितने आउटबिट आ रहे हैं। अब देखा जाए तो इसने जो यूज किया था वो यहाँ डिफाइन करवा दिया। तो आप रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, आप इसको किसी अलग नाम से डिफाइन करवा दीजिए। जैसे मान लो यहाँ मैं यूज कर लेती हूँ लाइक एल एम क्यू एन आर। ठीक है, ये एल एम आर एस, तो मैं यहाँ लिखूंगी एल एम, और क्लो को किसी अंदर नाम से डिफाइन करवा दीजिए एज एन इनबिट, एंड लास्ट में उसको भी किसी अंदर नाम से डिफाइन करवा दीजिए जो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैच ना होते हो। क्लियर, और बार बार रिपीट भी ना होते हो। तो एंड गेट में देखा जाए तो एक तो क्यू जा रही है और एक क्या जा रही है, यहाँ से अगेन क्यू जा रही है। तो उसने सिंपली दो नाम लिए हैं कि दो इनपुट और एक आउटपुट है। सिंपली कंपोनेंट डिक्लेरेशन पार्ट में हर एक कंपोनेंट के इनपुट काउंट करके लिखे जाते हैं विद अनदर नेम से। क्लियर, यहाँ वो सेम नाम से डिफाइन कर रहा है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, आपको आगे कंफ्यूजन हो जाएगी उस चीज से। तो आपने रिमेंबर दिस थिंग। और जो सिग्नल आपके बीच में आ रहे हैं, जैसे मान लो ये बीच में आ रहा है S1, ठीक है, और एक S2, इसकी क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी उसने एज ए सिग्नल डिक्लेयर करवा दिया। क्लियर। ठीक है, S1 S2 एज एन बिट टाइप, जिसमें आपका जो सिग्नल बिट है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर उसने उसको कंपोनेंट को यूज करना है विद वन बाय वन। एंड गेट एक बार यूज हुआ है, उसका लेबल उसने क्या ले लिया, A1। ठीक है, तो एंड गेट नाम दे दिया, फिर पोर्ट मैप लिखा, पोर्ट मैप में पहले इनपुट जाती है फिर आउटपुट जाती है। तो फिगर को ध्यान से देखो कि इसकी इनपुट पे क्या जा रहा है। क्लियर, इसकी इनपुट पे क्या जा रहा है, यहाँ से आपका Z1 जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका Z2 जा रहा है, और आउटपुट क्या आ रही है, S1। तो जब आप इसको कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट में लिखोगे, दैट इज योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट, तो यहाँ जो ओरिजिनल दिख रहा है वो डिक्लेयर करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट फिर जेके फ्लिप फ्लॉप को डिक्लेयर किया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जब JK1 का लिखा, तो JK1 आपका ये वाला है। ठीक है, उसमें J और K इनपुट है, Q एंड NQ आपकी आउटपुट है, और क्लॉक भी इनपुट है। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, J and K your input, so here we use the word S high count Z0 and open। क्लियर। तो JK1 अब उसके अकॉर्डिंग वो क्या ज्यूम कर रहा है, दैट इज ये वाला ले रहा है JK1। तो ये वही सेम है, यहाँ पे क्या आ रही है, S1 हाई, here your clock Z0, दैट इज K is your 1, वो भी हाई है। और आउटपुट पे क्या आ रहा है आपका, आउटपुट पे आपका क्या आ रहा है, Z0 एंड ओपन। ठीक है, तो वही सेम चीज उसके अंदर डायग्राम के अंदर यहाँ शो की हुई है। क्लियर, ऐसे हम हर एक फ्लिप फ्लॉप को एज पर योर ओरिजिनल थिंग, जैसे मान लो JK4 है, तो JK4 में आपके पहले इनपुट पोर्ट आएंगे, फिर क्या आएंगे, आपके आउटपुट पोर्ट आएंगे, और एक कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। इट मीन्स जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जो कंपोनेंट आपके डिक्लेयर हुए हैं उसका यूज कहाँ होगा, इन कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन के पार्ट के ऊपर, क्योंकि उस कंपोनेंट को आपने उतने ही इनपुट और उतने आउटपुट से क्या करवा रखा है, डिक्लेयर करवा रखा है, or that will be instantiated in your instantiation part. So that is the example of your D flip-flop. I also show after simulation you follow the diagram this. आप जब उस प्रोग्राम को रन करोगे, सिमुलेट करोगे, तो इस तरह का फिगर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल शेयर किया है, दैट इज अप एंड डाउन काउंटर। तो जो चीज आपको फिगर में दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइनिंग करनी है। मैं थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ आपको। इनपुट पोर्ट में आपकी एज पर दी आपको क्या देख काउंट दिख रही है इनपुट, और आपके ये सारे आउटपुट बिट वेक्टर हैं। और देखो क्या दिख रहा है, काउंट तो आपकी इनपुट हो गई है यहाँ पे देखने पे। यहाँ पे इनपुट देखो, काउंट अप और काउंट डाउन दो इनपुट है, क्लॉक इनपुट है, और आउटपुट कौन सी है आपकी, आउटपुट इज A B and C। तो वही सेम चीज उसने मेंशन की हुई है कि क्लॉक, काउंट अप एंड काउंट डाउन इज एन इनबिट, और ABC एज एन आउटबिट आ गई है। क्लियर, उसके बाद उसने जितने कंपोनेंट यूज करके उसको डिक्लेयर करवाया हुआ है विद अनदर्स नेम।